So now let's talk about memory management, another super important part जो पूछा जाएगा तुमको बहुत ज्यादा बार. I mean, I was probably asked like core CS में से मैं जिन कंपनी से बैठा था, Uber, Google, टावर, उसमें से सिर्फ मुझे टावर में ओएस पूछा गया, सिर्फ एक ही कोर सब्जेक्ट पूछा गया ओएस, ठीक है. एंड उसमें भी द क्वेश्चन वाज अराउंड मेमोरी, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी के ऊपर. सो विल टॉक अबाउट दैट टुडे एसेंशियली, ठीक है. So this is a diagram which we already know about, right? This is code run करा तो दो डब्बा बनाता है, right? So if you understand correctly, this is the memory which we are talking about, and we are talking about कि भाई ये memory काम कैसे करता है. We have been seeing this kernel space, memory space बहुत देर से देख रहे हैं, but we have never talked about कि actually क्या हो रहा है, वो RAM में है या कहाँ है actually, even is it all in RAM, maybe not. Let's think about it a little more, ठीक है. तो ये मेमोरी के बारे में अपन बात करेंगे, and there is like component of OS which handles all of memory for you. तुम्हें कुछ सोचना नहीं पड़ता है मेमोरी के बारे में कि actual कहाँ जाएगा, right? And it's a very beautiful piece of code. So memory दिखता कैसा है? I think these are the three very important illustrative pictures of what you would say is memory. And two things new. One is hard disk, which is still obvious कि हाँ यार hard disk में कुछ तो save करते हैं, but क्या save करते हैं? I mean, क्या difference है RAM and hard disk में? The second most important thing is CPU. Vivek, is it a memory? Well, it turns out, yes, it is memory. There is some parts of memory being used there. Registers, you can say. Plus, there are a bunch of caches that have been built in CPU now. Okay. So, इसको थोड़ा digress करते हैं. So, there is like CPU में there are registers which work like variables. ठीक है. So, they are like obviously very important piece of like memory. Temporary variable भी तो memory है ना एक तरह से. Then there is something called as memory caches which are there in the core, which is also very important. Then there is main memory which we call as RAM, जिसमें कुछ भी जो चल रहा है वो RAM में ही है, ठीक है. Then there is secondary hard disk जो नहीं चल रहा है वो सब चीजें store करने के लिए. And then you have external stuff. And this pyramid is in the order of how fast it is to get data from them. So when you are running something, getting data from it is super quick because core में ही है. Then it takes a little bit more time to get from caches. Then it takes a little more time to get from RAM. Then it takes way more time to get from hard disk. Okay? And that's why when you are running something, you want to keep the pieces of information, be that instruction ka code, or it might be the variables that you have created things, it as close to the apex as possible. Okay? Yeah, you are right. Okay. So then थोड़ा इनमें देखते हैं कि इसमें है क्या क्या चीज, राइट. विल टॉक अबाउट सुपर इंटरेस्टिंग पार्ट्स. CPU में क्या है? ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द मेमोरी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस, ठीक है. सो CPU में क्या है? रजिस्टर्स, कैश. सो देयर इज L1, L2, L3, L1 being closest but साइज छोटा. फिर then L2 being a little more slower but size उसमें और ज्यादा चीज स्टोर कर सकते हैं, stuff like that. And someone will never ask, but sometimes you will see L1D, L1I. D is for data, I is for instruction, ठीक है. Exact, शायद यही है. Exact. But D is for basically कुछ data save करना होता है, cache करना होता है, and sometimes you have to cache instructions कि वो same program counter बार hit हो रहा है. So you want to save those instructions in cache, right? Because you don't want to get them again and again from RAM. And then you also have TLB, which we'll talk about soon, ठीक है. Transition look aside buffer करके होता है to quickly find out which line to read. Program counter इसको access करता है फटाफट to get which line to read, ठीक है. Then there is RAM which has a kernel space जिसमें kernel लोड होकर अपना सब चीजें मैनेज कर रहा होता है. Then there is user space, ठीक है, जिसमें यूजर अपना सब प्रोग्राम्स जो क्रिएट करता है, उनके जो प्रोग्राम के वो एड्रेस स्पेसेस होते हैं वो सब क्रिएट होती है टू सम डिग्री. एंड देन यू हैव कैशेस आल्सो कि यार पेजेस का कैश होता है. सो यू वांट टू मेंटेन कि कौन सा डेटा कहाँ पर है, थिंग्स लाइक दैट विल कम टू पेजेस एंड स्टफ. स्वैप मेमोरी होता है, जैसे जो भी तुमने डब्बे को लाइक रैम से लाइक
थोड़े टाइम के लिए तुमने कोर से निकाल के रैम पे रखा या रैम से निकाल के हार्ड डिस्क पे रखा, इनके लिए स्वैपिंग होता है थोड़ा बहुत डेटा, ठीक है, फाइल बफर्स एंड ऑल, विल कम टू दैट लेटर, ठीक है। जैसे हार्ड डिस्क में भी स्वैप स्पेस होता है, हार्ड डिस्क में एक तुमने देखा होगा, आई डोंट नो इफ यू हैव एवर ट्राइड ऑन विंडोज दैट changing swap spaces and create like changing things like this. Swap space helps you when you are booting or you're installing it, you can decide the swap space of your hard disk when you are installing your OS on that, है ना। तो यूजर स्पेस मतलब जहाँ यूजर्स अपना प्रोग्राम लिखते हैं, तो यहाँ पर सस्पेंड होके जाएगा तुम्हारा कोड, वो जो प्रोग्राम का डब्बा था ना, एड्रेस स्पेस, उसको डब्बे को एड्रेस स्पेस बोलते हैं ब्लू वाले, it goes into this swap space and then rest of the data में तो फाइल वाइल जो तुम्हारा a.cpp फाइल वाइल रखा है वो सब हार्ड डिस्क में रखा रहता है, राइट। एवरी फाइल दैट यू राइट दे आर सेव्ड इन हार्ड डिस्क। गेम्स के जो तुम्हारे सेटअप वेटअप हो गए, फाइल्स हो गए, एप्लीकेशंस जो तुमने इंस्टॉल कर रखे, जो तुम्हारा सी ड्राइव डी ड्राइव होता है, ऑल दीज आर देयर इन द हार्ड डिस्क, ओके। so this is essentially the two parts. One is प्राइमरी मेमोरी जिसको बोलते हैं, वोलाटाइल मतलब कंप्यूटर बंद, इलेक्ट्रिसिटी का सिग्नल बंद, तो ये पूरा गायब डेटा, ठीक है। secondary memory क्या बोलते हैं, hard disk is part of secondary memory and like pen drives and stuff will also come over here only, is basically non volatile, मतलब कंप्यूटर बंद हो गया तब भी डेटा persist करेगा, right, because you need different pieces of hardware to be able to support that and you don't want, and they're like doing it at this fast speed and scale is super costly, तो वही है कि cost, speed and size के बीच में अपन सब play कर रहे हैं अलग अलग चीजों का, ये बहुत high speed low space कॉस्ट तो सो मतलब बैलेंस, कॉस्ट सबका बैलेंस करने की कोशिश की जाती है बेसिकली, राइट। देन रैम गुड स्पीड, लिटिल लार्जर स्पेस, बट नॉन वोलाटाइल, कॉस्ट कमाने के लिए नॉन वोलाटाइल करना पड़ा, सॉरी कॉस्ट कमाने के लिए वोलाटाइल करना पड़ा, राइट। यू आई मीन much many other factors also come into picture but वही है, cost is the major reason, ठीक है। तो पूरा सिर्फ कंप्यूटर में रजिस्टर्स ही क्यों नहीं है, पूरा रजिस्टर्स इतने इतने सारे रजिस्टर्स भर दो, राइट, इट्स कॉस्टली, दैट्स व्हाई, ठीक है। सो दिस इज एसेंशियली देयर। आई मीन देयर आर कंप्यूटर्स व्हिच डोंट लाइक हार्ड डिस्क से लोड करने के लिए स्टार्ट में चाहिए होता है, दैट स्पेस इज थोड़ा बहुत चाहिए, बट बाकी तो कुछ नहीं चाहिए, मे बी यू कैन कीप, यू कैन रन एवरी लाइक once the program starts you can run it on RAM to some degree, right, and my personal like I used to do that actually। मैं जब I went to college in 2 days I was very enthusiastic कि भाई मेरे को सीनियर ने बोला लिनक्स इंस्टॉल करने का कंप्यूटर पे, so I installed, I tried to install, पूरा कंप्यूटर गायब हो गया, उड़ गया, ठीक है, विंडोज गॉट डिलीटेड एंड लिनक्स इंस्टॉल नहीं हुआ, so I was पेन ड्राइव डाल के मैं लिनक्स को बूट कर रहा था एंड देन इट्स रनिंग ऑन माय रैम, so now I can save the files on in the pen drive but बहुत छोटा सा पेन ड्राइव है, इट्स रनिंग मोस्टली ऑन रैम, सो मैंने वैसे 2 दिन तक यूज किया था, राइट। डुअल बूट करने की कोशिश की गई थी बट हुआ नहीं था मेरे पीसी में, मैंने कोशिश करा तो फिर मेरे को जोश आ गया, विंडोज हटा ही देता हूँ, जरूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है। सो उसका जगह फिर भी इंस्टॉल नहीं हुआ, दैट्स द दर्द, ठीक है। ओके, सो यू हैव दिस बॉक्स which is generally in MBs, ठीक है। So this is essentially what you try to put in RAM because of its size, ये तो few hundred bytes का होता है, so you can try to put it, this always resides in RAM, but ये है कि ये कभी कभी ग्रो करते करते GBs भी जा सकता है। this blue box is called address space, है ना, तो this is essentially blue box is the expansion place, ये जगह, है ना, हाँ। दिस इज वाई सो विंडोज चाहिए, स्टीम चलाने, इसलिए मैंने मैक खरीदा था क्योंकि मुझे गेम नहीं खेलना था, मतलब आई मतलब एनवायरनमेंट से वो चीज हटा दो तो कंट्रोल ही कर नहीं सकते फिर उसके बाद, तो दैट इज व्हाई आई डिलिबरेटली बॉट मैक कि कम चले गेम। ठीक है, नहीं तो मैं तो फर्स्ट ईयर ऐसे लाइक एसेसिन्स क्रीड खत्म ही किए जा रहा हूँ बस लेवल्स, दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है, इनडेफिनेटली। तो गेम्स खेल हटाने के लिए आप कंप्यूटर चेंज कर सकते हो, दैट्स अ सजेशन। ओके, क्वेश्चन, टीसीबी कहाँ स्टोर होता है इन सब जगहों में से?
We learned, right? PCBs are there in RAM, but in kernel space mostly. And sometimes they get loaded. जब वो खुल गया, load हो गया, so a lot of its content goes into the CPU, right? But this box is stored in RAM. खोल के डेटा लेके जाके CPU में भर देते हैं when it's running, right? Next, address space कहाँ पर रहता है? ये जो डब्बा था, ये डब्बा कहाँ रहता है? Where does this lie? So it's in user space of the RAM, right? It's in the user space of the RAM because this program has been created by somebody. So वो user space पे रहता है. It doesn't has the kernel space का permissions and stuff. And sometimes it's swapped out into the swap space. ठीक है? Sometimes it's swapped out into the swap space. That is the two places where it resides. ठीक है? So this is what is happening कि ये डब्बे जब तुम यहाँ देख रहे हो ना, ये डब्बा खुल के इस पे रजिस्टर्स भर रहा है. ये जो एड्रेस स्पेस का कुछ कुछ चीज कैश होके यहाँ सेव हो रहा है कैशेस में, राइट? कैश में भी रहता है कुछ कुछ लाइंस बस, राइट? स्वैप स्पेस वही था ना, अभी पढ़ेंगे. विल कम टू स्वैप स्पेस, क्योंकि एवरीथिंग माइट नॉट फिट इन रैम, तो कुछ कुछ चीज को स्वैप करके बाहर रख देते हैं. सस्पेंडेड स्टेट, ये जो सस्पेंड स्टेट था ना, सस्पेंड वेट, तो ये रैम से कुछ कुछ डब्बों का ये एड्रेस स्पेस हटा के इधर स्वैप स्पेस में भर देते हैं हार्ड डिस्क का, राइट? दिस इज व्हाट द वर्क ऑफ स्वैप स्पेसेस इन द हार्ड डिस्क्स. अब तो समझ में आ रहा है मेमोरी कहां पर क्या चल रहा है? ये तो थोड़ा थोड़ा क्लियर पिक्चर समझ में आ रहा है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. 50% क्लियर. रेस्ट. हाँ, सस्पेंडेड पीसीबी नहीं, पीसीबी हमेशा रैम में रहती है. वो छोटी बाइट्स बाइट्स में होती है, उसकी साइजेस छोटी छोटी होती है, तो वो रैम में रहती है हमेशा. ये जो डब्बा जब यहाँ होता है, ये जो एड्रेस स्पेस होता है, ये जब अगर इसका स्पेस खत्म हो जाता है, राइट, इसके लिए जगह खत्म होता है रैम में, तो इसको यूजर स्पेस से निकाल के स्वैप स्पेस में भेज देते हैं. कुछ है नहीं, बस एक अलग जगह है जहां पर बस ये डब्बे सेव होते हैं और कुछ नहीं. दैट्स इट. ओके. जब पीसीबी का प्रोसेस खत्म होता है, देन वोंट इट, हाँ, खत्म होने के बाद तो हटाएंगे ऑब्वियसली. हटा के तो बंद कर दे, डिलीट कर देंगे ना उसको. तो दिस मेमोरी इज मोस्टली रैम. ओके. अब थोड़ा रैम पे आते हैं, बिकॉज वी हैव बीन सेइंग एवरीथिंग इज इन द मेमोरी और रैम फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है. तो रैम में होता क्या है? कुछ नहीं होता है. लाइक व्हेन यू वांट टू लाइक एक्सेस अ पर्टिकुलर प्रोसेस इन रैम, essentially there are like blocks we had seen, right? वो 800 8001 8002 ऐसे अलग अलग like ऐसे चीजें सेव की हुई थी instructions, and they were being stored. So वही है RAM. They're like bunch of lines. सबका एड्रेस है, and उस एड्रेस पे कुछ तो भी लाइन लिखा हुआ है उस प्रोसेस का, right? And there are bunch of lines like this. So a process needs a continuous sequence. तो हर प्रोसेस के लिए you will have a base address, and you will have a लाइक अ लिमिट एड्रेस कि भाई इस बेस से लेकर के बेस प्लस लिमिट तक के बीच में मेरा प्रोसेस है, राइट? सो दीज टू थिंग्स आर सेव्ड इन द वैल्यूज ऑफ दैट प्रोसेस. जो हमने लिमिट बोला था ना, कि ये दो चीज सेव्ड रहती है. एंड देन इफ दिस प्रोसेस रनिंग ट्राइज टू एक्सेस एनीथिंग लेस देन दिस और बिगर देन दिस, तो हम उसको बोलेंगे भाई तुमने कुछ बाहर का एक्सेस किया है, सेगमेंट फॉल्ट. सेगमेंट फॉल्ट समझ में याद आ रहा है? कुछ कोड में आता है जो तुम लोग का कभी कभी चलाते चलाते, runtime error. This is what is essentially evoking it to some degree. Okay, that is going outside the limits of its permissible process वाला part in RAM. तो mental idea तो यही है अभी भी दो, that these boxes are there in kernel space in RAM now, and then this thing is there in a linear structure जहाँ एक एक chunk तुमको मिल रखा है process के लिए, right? वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू शुड नो इज एड्रेस बाइंडिंग. कि भाई ये डिसाइड कब होता है कि कौन सा प्रोसेस किस एड्रेस पे जाएगा? दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि प्रोसेसेस तो अपने आप डिसाइड थोड़ी करेंगी, राइट? प्रोसेस अपने साथ थोड़ी डिसाइड करेगी. यू नीड टू नो कि भाई ये प्रोसेस जा कहाँ रही है, किसकी कौन सा प्रोसेस इसको मतलब कहाँ पर जाएगी इस पूरे चीज में, राइट? सो समटाइम्स
यू कैन पॉसिबली बिल्ड इट दिस वे कि जब कंपाइल होगा तभी डिसाइड हो जाए कि ये इस लाइन से इस लाइन के बीच में रन करेगी, व्हिच इज बोगस आई फील, ठीक है, कोई ऐसा करता नहीं है. देन कंपाइल करते टाइम इट बेसिकली जनरेट्स अ कोड व्हिच इज रिलेटिव टू सम लाइक बेस एड्रेस, कुछ x लेकर के सब सारे जो भी कोड में एड्रेसेस है वो x+5 x+38 x+ ऐसे करके लिखा हुआ है. देन एट द लोड टाइम इट गेट्स कन्वर्ट, जब तुम उसको a.out को रन करते हो देन इट्स गेट्स मार्क्ड इनटू कि भाई ये 3040 से जो भी 340 से 3 लाख है ना, 340 से इतने दूर तक के बीच में आएगा, ठीक है, इसके इधर से इसके बीच में आएगा आंसर. तो यू कैन हैव अ बेस एड्रेस बीइंग वेरिएबल एंड देन वो वेरिएबल जब तुम सेव लाइक लोड कर दोगे तो उसके हिसाब से पूरा एड्रेस स्पेस डिफाइन हो जाएगा. दैट्स वन पॉसिबल वे. अनदर इज तुम हमेशा वो रिलेटिव ही रखोगे, एक सेपरेट वेरिएबल रहेगा, एक सेपरेट रजिस्टर रहेगा व्हिच विल मेंटेन द लाइक रिलेटिव पॉइंट कि कहां से लोडेड है. एंड यू माइट वांट टू शिफ्ट इट कि यार यहां से उठा के नीचे डाल दिया, तो वो बस वो वेरिएबल चेंज कर दो सब कुछ चेंज हो जाएगा. पूरा उठा के नीचे रखा एंड वो वेरिएबल चेंज कर दिया, सो नाउ एवरीथिंग एल्स इज रिलेटिव टू दैट. दैट्स कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम. कि चलते चलते भी चेंज हो सकता है लाइन नंबर, कि पूरा कोड इधर मूव किया रैम में और साथ में अपने वो वेरिएबल चेंज कर दिया बेस वाला वेरिएबल कि कहां पर हूं मैं, तो सब कुछ चेंज हो गया कोड में, राइट. दिस इज हाउ 3 काइंड ऑफ एड्रेस बाइंडिंग हैपेंस. एंड यही होता है सब चीज एक रिलेटिव पॉइंटर के अगेंस्ट डिफाइंड होती है कि इस पॉइंटर से +5 +9 +100 +1000 इस टाइप का, राइट. एवरीथिंग इज रिलेटिव. एंड देन वो पॉइंटर अगर चेंज हो गया इनिशियल वाला तो पूरा प्रोग्राम इट फील्स लाइक द प्रोग्राम हैज मूव्ड डाउन, राइट. तो यही हो रहा है, मतलब मेमोरी है हमारे पास रैम टाइप का एंड देन उस पर प्रोसेसेस लोड हो रही है एंड देन प्रोसेसेस 5 हो रही है, देन लाइक 8 अगर खत्म हो गया तो it clears up the place over here, then some new process comes in so it gets allocated a region, then something else ends and things like this happen. This is how on RAM processes are getting created, completed, things like this. यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? Okay. Next. ये 9 को जगह कौन सा दे कैसे डिसाइड होता है? ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम हमेशा एग्जीक्यूशन टाइम वाला यूज होता है आज के कंप्यूटर्स में. ब्लू पार्ट इज फ्री मेमोरी, ये पूरा रैम है, ये पार्ट है फ्री मेमोरी, ठीक है. तो 9 को दे कैसे, कौन सा जगह दे? सो देयर आर सर्टेन एल्गोरिथम्स फॉर दैट आल्सो कि भाई फर्स्ट जहां पर ऊपर से स्कैन करो, जहां जगह मिल जाए कि इतना इतना साइज का चंक बैठ जाएगा तो वहां बैठा दो, ठीक है. फिर बेस्ट फिट करके होता है कि जहां पर जो सबसे छोटा जगह है, लाइक यू माइट हैव लाइक यहाँ पर जैसे एक एक होल बना, इसको बोलते हैं होल बोलते हैं, ठीक है. ये जगह खाली है, इसके बीच में भी होल हो सकता था, सो यू माइट वांट टू इंसर्ट इन द स्मॉलेस्ट गोल जहां पर सबसे कम बचे लेफ्ट ओवर होल जो बचे, एंड सबसे बड़े वाले जगह को ढूंढ के उसमें डाल दो. यू कैन हैव एल्गोरिथम्स लाइक दिस, डोंट वरी, ये सब होता नहीं. I'll come to the, ये वही है बोर्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, अभी खत्म सब गायब हो जाएगा, ये सब चीज करते नहीं है हम लोग. ठीक है, बट हमें जानना है क्योंकि पूछा जाएगा कि अच्छा फ्रैगमेंटेशन क्या होता है एंड ये प्रॉब्लम्स क्या होती है, इसलिए जानना पड़ेगा हमें, ठीक है. कि व्हाई डिड पीपल डिजाइन इट दिस वे, यू नीड टू नो द रीजन कि ये ऐसा है तो क्यों नहीं, क्यों है वो वाला क्यों नहीं है. This is essentially the question that you should be able to answer to anything and everything that you study. If you are able to answer that, you are far ahead of everybody else in that topic most probably. And be that in anything, dev वेव किसी में भी ये ऐसा है तो क्यों ऐसा है, कुछ और क्यों नहीं कर रहे. That is what you need to be able to answer. So स्ट्रेटेजी जो भी हो, यहाँ पर बीच में देख रहे हो ना, यहाँ पर एलोकेटेड स्पेस है, ठीक है, ये सब जगह यूज हो रखा है और ये जो बीच में कुछ कुछ जगह खाली है वो लाइक वेस्ट हो रहा है एक तरह से, राइट. लाइक दैट वो लीनियर एरे में वो जगह पार्ट खाली है तो उसको यूज नहीं कर पा रहे हम लोग, राइट. तो दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या होता है, व्हेन लाइक टोटल मेमोरी अवेलेबल है, मतलब सपोज तुम्हें 50 GB या 40 GB चाहिए, 40 KB चाहिए, सॉरी जीबी नहीं केबी चाहिए, 40 KB है बट वो इन होल्स में स्प्लिट हो गया है तो अब यूज नहीं कर पा रहे उसे, राइट. दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन. इंटरनल मतलब अपने प्रोग्राम में ही होता है, मतलब सेम प्रोग्राम के अंदर अगर फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, नॉट नीडेड मच, ठीक है. तो एक तरीके से लोगों ने फिर ऐसा बिल्ड करा कि हम लोग चाहे तो कॉम्पैक्शन कर सकते हैं, है ना, कि सब जब जब लग रहा है कि अब जगह खत्म हो गया है तो सब कुछ ऐसे करके, बिकॉज
तुम्हें तो कंटिन्यूस चाहिए ना, ऐसे करके तुम्हें ये पूरा प्रोसेस एक जगह पे डालना है, उसको चाहिए 100 लाइंस, तुम्हारे पास है जगह 50 लाइंस का, तो तुम कहाँ डालोगे, राइट? एक कोड है, एक पूरा एड्रेस स्पेस है, उसका साइज है 20 KB, कहाँ डालोगे तुम इसमें? सब तो जो गैप्स है उसमें तो जगह नहीं है, एंड दीज आर लोडेड, राइट? यहाँ तो वैल्यूज रखे हुए हैं, तो यू कैन नॉट मूव देम सो इजीली। तो देयर इज अ वे ऑफ लाइक कॉम्पैक्टिंग इट, कि तुमने सब कुछ उठा के उसको कॉम्पैक्ट कर दो, एंड देन 50 GB विल गेट बिकम फ्री, एंड दिस इज व्हाट ऑन विंडोज यू माइट like right click, and on my computer you can go and do defragmentation to make it faster your computer a little bit, but खैर इसका भी अपना लिमिटेशन है, ठीक है? कि ये भी मूव करेंगे तो कॉस्टली ऑपरेशन है ये एक तरह से, इफ यू थिंक अबाउट इट, राइट? देयर इज सम स्टैटिस्टिक्स अराउंड इट दैट लाइक फर्स्ट फिट, जैसे तुम कोई भी एल्गोरिथम यूज करो फिट करने के लिए, राइट? तो अगर तुमने n स्पेस यूज कर रखा है तो 0.5 n मोर विल गेट वेस्टेड, मतलब एसेंशियली 50% तुम वेस्टेज करने वाले हो अगर तुम n यूज कर रहे हो एसेंशियली, मतलब 50% उसका खुद का नहीं, 50% मोर ऑफ दैट इज वेस्टेड, ठीक है? दिस इज अनदर रूल दैट पीपल हैव सीन एज स्टैटिस्टिक्स की, चाहे तुम कुछ भी एल्गोरिथम यूज करने की कोशिश करो, फर्स्ट फिट इज इजी टू यूज, बिकॉज स्कैन करते करते आओ, जहां जगह मिल गया डाल दो, दैट इज बेसिकली द एल्गोरिथम, राइट? बट लॉट ऑफ स्पेस गेट्स वेस्टेड। तो फिर पीपल ने बनाया कि भाई नहीं, एक साथ पूरा डब्बा डालेंगे तो जितना जगह तो बन नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, वी विल मेक थिंक अबाउट द कोड, एंड उसका जो पार्ट्स है उसको अलग अलग पार्ट में कर देंगे, कि भाई एक सिंबल टेबल अलग बना देंगे, स्टैक अलग बना देंगे, कुछ फंक्शंस का पार्ट अलग डाल देंगे, मेन प्रोग्राम अलग जगह डाल देंगे, ऐसे करके कुछ कुछ कर देंगे, राइट? वी विल ट्राई टू ब्रेक द एड्रेस स्पेस इनटू सेगमेंट्स, एंड देन सेगमेंट्स को पूरे रैम में अलग अलग जगह पे डालेंगे, राइट? हाँ, सो दिस इज सेगमेंट्स को अलग अलग जगह पे डालेंगे, बट दिस इज ऑल्सो नॉट दैट ऑप्टिमल, ठीक है? कि तुमने सेगमेंट, इस ये जो सेगमेंट्स लिया, उस सेगमेंट को देखा कि भाई वो सेगमेंट तुम कहीं कहीं रखे हो, यू कैन यूजर हार्डवेयर की सीपीयू देखेगा कि उसको ये वाला पेज, ये वाला लाइन चाहिए, तो वो देखेगा किस सेगमेंट में है, उसके हिसाब से फाइनली फिजिकल मेमोरी को एक्सेस करेगा। कि अच्छा, अगर मैंने बोला लाइन नंबर 4000, लाइन नंबर 6400 निकालो, ठीक है? 6400, तो इट विल गो टू दिस लाइन ओवर हियर, थाउजेंड्स में सपोज अगर डिफरेंशिएट हो रहा है, सो 1000 में 6 है, तो 6 में देखेगा कि यार ये सेगमेंट 1 है, तो सेगमेंट 1 का बेस एड्रेस क्या है? 6, सॉरी, एड्रेस स्पेस में हम लोग वो नंबर लेंगे, द ओरिजिनल नंबर दैट विल कम ओवर हियर इज इन द लॉजिकल स्पेस, सो 6000 नहीं लेंगे, मतलब कोई भी एक नंबर आएगा, बट इट्स अ पार्ट ऑफ इट विल टेल यू कि किस तरफ कौन से वाले बेस को यूज करना है, एंड बाकी का पार्ट जो रहेगा वो तुम्हें बताएगा कि एड्रेस स्पेस के आगे कितना है। तो जैसे यहां पर तुम्हारे पास लॉजिकल कोड है, आई विल एक्सप्लेन इट वंस, आई विल एक्सप्लेन इट क्विकली, ठीक है? सपोज यहाँ पर लॉजिकल स्पेस है, इसमें बोल रखा है कि अच्छा यहाँ पर 0 टू, तुम्हारा जो कोड था वो 0 to 500 है, तो मैंने बोला भाई 0 to 100 सेगमेंट 1, 100 टू ये सेगमेंट 2, 200 सेगमेंट 2, एंड सो ऑन, ठीक है? एंड देन आई वांट टू एक्सेस 115 वाला लाइन, 115, तो मुझे पता है कि हंड्रेड्स के टर्म्स में ब्रेक होता है, तो ये 115 का, आई मीन दिस हैपेंस इन बिट्स, दो ये ऐसे मत सोचना, ये सामने वाला बिट देख के मैं देखूंगा कि भाई इधर कौन सा सेगमेंट है, फर्स्ट वाला सेगमेंट, फर्स्ट सेगमेंट कहाँ स्टोर्ड है, इधर से स्टोर्ड है, उसके बाद मुझे चाहिए 15 इसके लिमिट के अंदर आता है, ठीक है? तो 6315 वाला एड्रेस से निकाल के दे दो, इसका फिजिकल मेमोरी 61, सेगमेंट 1 का जो भी 615 थी वहां से लाके दो इसको, राइट? वही, तो सेगमेंट विल बी 1, दिस इज हाउ यू कैन डू इट, कि यहां पर तुम्हें देखने में लग रहा है कि ये सारा का सारा कंटिन्यूअस है, बट एक्चुअली देयर इज अ टेबल व्हिच इज कन्वर्टिंग इनटू नॉन कंटिन्यूअस सीक्वेंस, नॉन कंटिन्यूअस चंक्स। ये समझ में आया? हाँ, कंप्यूटेशन तो बढ़ रहा है, बट वो स्पेस खत्म होने वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रहा है ना, दैट्स इट। एस एंड डी, एस है मतलब ये वाला पार्ट, दिस जो तुम्हारा सेगमेंट का लाइक जो ये जो एड्रेसेस होते हैं ना, वो 64 ऐसे, जितना तुम बिट 32 बिट सपोज एड्रेस है, तो उसमें से हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट 5 बिट्स तुम्हें बताएगा कौन सा सेगमेंट है, एंड रेस्ट विल टेल यू द पेज नंबर, दिस इज हाउ इट एक्चुअली हैपेंस, बिट्स में होता है। सो फर्स्ट 5 बिट्स विल टेल यू कि कौन सा सेगमेंट है, सेगमेंट नंबर 1 2 3 4, एंड देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल टेक यू उस सेगमेंट में कौन सा वाला पेज,
ठीक है, क्योंकि अब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा सा GTA का गेम है, ठीक है, उसको चाहिए पूरा रैम का आधा साइज। अब आधा डाल देंगे तो फिर तो लाइक बहुत सारा रैम बार बार, मतलब इसमें जो चंक्स होंगे वो सब चीजें मतलब बहुत बड़ा चंक उसने उठा लिया, राइट। एंड जो कॉम्पैक्शन वगैरह करना पड़ेगा, फिर हमें पूरा उसे मूव करना पड़ेगा, नंबर वन, ठीक है। जो अब जब हमें कोई चीज ढूंढना है, होल्स अगर क्रिएट होंगे, लाइक छोटे छोटे बड़े बड़े साइजेस के होल्स क्रिएट होंगे, तो 3 पार्ट आए तो यहाँ पर ऐसे इतना पार्ट वेस्ट हो गया, इसको छोटा छोटा पार्ट ब्रेक कर दो तो लाइक जल्दी होल्स क्रिएट नहीं होंगी, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट विल गेट लेसर, ठीक है। एंड दो स्टैटिस्टिकली कुछ भी हो सकता है वैसे तो, ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं ये कम हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो एक तो छोटे चंक्स को ऐड करोगे तो मतलब छोटे पीसेस को ऐड करना इजी है, राइट। बड़े बड़े ऐड करेंगे तो बड़ा बड़ा होल क्रिएट होगा, राइट। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो छोटे पीसेस होल्स में फिट हो जाएंगे। हाँ, पर प्रॉब्लम अभी भी सेम है, राइट, प्रॉब्लम अभी भी सेम है, सॉल्व तो नहीं हुआ ये, ठीक है। फिर हमने बोला नहीं भाई ये सब करके नहीं होने वाला, इस रैंडम रैंडम पेजिंग नहीं, फिक्स्ड साइज का सेगमेंट चाहिए। तो इसलिए somebody made this thing called paging which is what is used, जो तुम्हें जानना है कि हम क्या करते हैं। जो हमारा था वहां पर, पहले भी हमने सॉर्ट ऑफ पेजिंग ही करा था, बट यहाँ पर जीरो से लाइक लॉजिकल एड्रेस स्पेस, मतलब एक सेकेंड, इसको नहीं करना है अपने को अभी, है ना। तो ये 0, 100, 200, 300, तो एक पेज साइज 100 का है। यहाँ पर भी ये 100 का होगा कि ये 0 to 100, 100 to 200 ऐसे करके रहेगा। तो यहाँ से एक फिक्स साइज का पेज लाके इधर रखो कहीं पर, और यहाँ पर पेज टेबल बताएगा कि अच्छा फर्स्ट पेज 1 पे है तो 1 पे चला जाओ, सेकेंड पेज 3 पे है तो 3 पे चले जाओ, थिंग्स लाइक दिस, राइट। अब फिक्स्ड चंकिंग अगर हमने कर दिया तो देखो काफी, तो फिर ये जो बीच में वेस्टेज हो रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यस और नो। अगर फिक्स्ड साइज का चंकिंग हमने कर दिया तो क्या बीच का जो वेस्टेज होल्स का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो रहा है। क्योंकि अब तो देखो सबका सारे प्रोग्राम का साइज चंक सेम होगा, तो कोई भी आगे कहीं पर भी ले सकता है जगह प्रॉपर्ली और कुछ वेस्टेज नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करा वो होल्स वाला प्रॉब्लम, कि वेस्ट तो नहीं करना है, रैम बहुत प्रेशियस है हमारे पास, वेस्टेज तो अफोर्ड नहीं कर सकते हम, ठीक है। कंप्यूटेशन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सह लेंगे कि भाई हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है टू फाइंड विच पेज, बट स्पेस वेस्ट कर दे 4 GB में, वो तो नहीं कर सकते क्योंकि पूरा बहुत सारे प्रोग्राम चलने वाले कंप्यूटर में, राइट। चलो, तो यही पूरा प्रोसेस इसमें होता है, लाइक दिस इज व्हाट कंप्यूटर्स एक्चुअल हार्डवेयर लुक्स लाइक, एंड दिस, अगर ये समझ गए हम लोग तो मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है कहानी। जैसे वही है कि यहाँ पर कंप्यूटर में जैसे मैंने बोला कि पेज साइजेस यहाँ पर डिफाइंड होती है, कि यहाँ पर भी लाइक 100, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 100 साइज का है, ऑब्वियसली भी इन सम 2 to the पावर्स होगा एंड बिट्स में होता है ये सब चीजें एक्चुअली, ठीक है। बट 100, 200, 300, ठीक है। एंड देन इन दिस सीपीयू तुम्हें आएगा, यहाँ से आएगा 115, ठीक है, 115। सो 115 आएगा तो तुम देखोगे कि यार ये 15 तो ठीक है, हम बेस देखो हम बेस 10 में कर रहे हैं ताकि तुम लोग समझ पाओ इजीली, एक्चुअली ये होता है बाइनरी में, ठीक है। तो यहाँ सामने का ये डिजिट देख के आप बोल सकते हैं कि भाई कौन सा पेज है, पेज नंबर क्या है इसका 1, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो पेज नंबर है ये 1 है, ये देख के हम एक्सप्रेसली बोल सकते हैं कि हाँ भाई पेज नंबर 1 यहाँ पर जो भी इंप्लीमेंटेड है उसका फ्रेम नंबर 3 में स्टोर्ड है, तो थर्ड फ्रेम में 0, 1, 2 थर्ड फ्रेम से उठा के ले आओ, पेज नंबर 1 यहाँ स्टोर्ड था। दिस इज वन वे, दिस इज हाउ व्हेन द प्रोग्राम इज लोडेड, वो सब चीज लाइक सॉरी, ये पेज नंबर यहाँ पर ये 1 के लिए 3 में स्टोर्ड है, ये जो हमने पिछले वाला ड्रॉ किया था ना। जब हमने इसको एक्सेस किया तो वी ऑल्सो स्टोर इट इन समथिंग कॉल्ड एज TLB, ट्रांजिशन लुक असाइड बफर, ठीक है। ये जो पेज टेबल है ना, ये तो यार हर प्रोग्राम का थोड़ा बड़ा बड़ा बन सकता है, मतलब देयर माइट बी मल्टीपल नंबर ऑफ चंक्स। ये TLB क्या है, कैश। हमने जिसको एक्सेस करा इस प्रोग्राम का 1, 3 वाला था, तो ये हमने इसको इधर सेव कर दिया कि भाई इधर हमने इसको लोड किया था तो 1 का 3 होता है। ये थोड़ा और फास्टर सॉफ्टवेयर है। पेज टेबल कहां स्टोर होता है, रैम में, ये खुद भी रैम में स्टोर होता है। हम तो प्रोग्राम को रैम में स्टोर कर रहे हैं, वो मैप्ड कहां है, वो भी प्रोग्राम, वो भी हम रैम में स्टोर कर रहे हैं, ये भी रैम में स्टोर होता है।
पर हम बोलते हैं कि यार बार बार रैम में जाके पहले पता करो कि किस पेज पे है, फिर वो पेज को फेच करो, दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ऑपरेशन। तो हमने क्या बोला भाई, हम एक छोटा सा एक कैश बनाएंगे विच विल बी इनसाइड आवर सीपीयू ओनली, और उस पे कुछ कुछ जो बहुत फ्रीक्वेंटली जो पेजेस हिट हो रही है उनको हम यहाँ सेव कर लेंगे टीएलबी में, राइट। विल से कि भाई 1313 बार बार आ रहा है तो यहाँ पर मतलब पहली बार में यहाँ सेव हो जाएगा, राइट। एंड देन नेक्स्ट टाइम इट कम्स तो हम पहले पैरेलली एकदम फट से, टीएलबी बहुत फास्ट होता है सर्च करने में, सो फट से सर्च करेगा, 1 है हिट होगा, 3 तो टीएलबी हिट होता ही उसको यूज करेगा, 3 यूज करो, 3 का 15th वाला लाइन, तो 3 का 15th वाला लाइन लेके आओ। तो दिस इज व्हाट, हाँ, सो काइंड ऑफ लाइक अ रजिस्टर, मतलब ये एक फास्टर पीस ऑफ हार्डवेयर है जो तुम्हारे कोर में बना हुआ है, क्योंकि बार बार पेज टेबल रैम से लोड करो, फिर से रैम के पास जाओ टू फेच द लाइन, दैट्स एक्सपेंसिव। तो जो लाइंस बार बार हिट हो रही है वो पहले एक बार अगर हिट होगी ऐसे करके जाएगी ऐसे एक बार, करेक्ट, बट अगली बार वो टीएलबी में सेव्ड हो जाएगी, तो बार बार फिर यहां से आ जाएगा बहुत फास्ट कोर में। तो फिर पहले क्या हो रहा है, तुम जब ये बोला कि तुमने बोला ये लाइन नंबर, ये इंस्ट्रक्शंस कि 115, ये तुम्हारा इंस्ट्रक्शन वाला वो डिकोड वाले स्टेप में आया कि ये लाइन हमें चाहिए। तो अब जाके प्रोग्राम काउंटर सपोज यहां पर है, तो क्या हम जाके इसको फिर पहले जाएंगे एक बार रैम में, बोलेगा कौन सा वाला लाइन, फिर वो लाइन लाएगा, फिर से जाएंगे रैम में, बोलेगा ये, ऐसे नहीं। हम बोलते हैं कि अगर ये लाना है तो 115 पहले टीएलबी में चेक करो, मेरे पास पता है क्या मुझे किस फ्रेम नंबर पे है, अगर नहीं पता है तो हम रैम के पास जाएंगे। तो दिस इज लाइक अ कैश लेयर जो हमें बार बार रैम, ये जो पेज टेबल का रैम हिट करना, उसको लोड करके उसको चेक करना, ये सब चीजें हटा देता है हमारे लिए, ठीक है। दैट्स टीएलबी। दिस कंसेप्ट इज सुपर इंपॉर्टेंट एंड पूछा जाता है टीएलबी क्या होता है, ट्रांजिशन लोकल साइड बफर क्या होता है वो इसमें पेजिंग में, ठीक है। पेजिंग, टीएलबी, दीज आर फेयरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं। दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ओएस। पेजिंग, सेगमेंटेशन, ये सब चीजों के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो जानना पड़ेगा इसको अच्छे से। समझ में आ गया टीएलबी का क्या काम है, पेज टेबल बार बार नहीं जाना पड़े, तो टीएलबी हमारे कोर में ही सेव्ड है, राइट। क्विक +1 टिल दिस पॉइंट, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसेप्चुअली ये होता है। अब ये जो 115 मैंने बोला, ये एक्चुअली होता कैसे, 32 बिट उसमें होता है। 32 बिट अगर हम 32 बिट सपोज एक एड्रेस, ऐसे बिट्स का एक एड्रेस आया कि ये इंस्ट्रक्शन है 32 बिट का, तो उसका पहला 5 बिट तुम्हें बताएगा कि किस पेज में है, स्टफ लाइक दैट, एंड देन उसमें इंस्ट्रक्शन। एक्चुअली इतना नहीं, अगर अगर तुम यहाँ पर लाइक कुछ सम 32 बाइट की थोड़ा बड़ा होता है साइज, बट अगर तुम लास्ट के 5 ही बस पेज नंबर बताता है, इतना सारा सबका सब पेज नंबर बताता है, ये पेज का ऑफसेट होता है, छोटा होता है ऑफसेट। टीएलबी इज ट्रांजिशन लुक असाइड बफर। लेट्स कम टू दैट, ठीक है। तो the page table could be stored in main memory along with the single register called the page table register। ये register में saved रहता है कि page table कहाँ पर saved है, ठीक है। तो page table भी RAM में ही stored है, और core में उसका एक PTBR करके एक register होता है जिसमें उसका location stored होता है बार बार। तो page table hit करो फिर लेके आओ, बट वही है कि जो मैंने बोला, मेमोरी 2 बार ट्वाइस करना पड़ेगा, तो दैट विल बी कॉस्टली, तो इसलिए हम टीएलबी बना लेते हैं, ठीक है। सो टीएलबी इज एक्सट्रीमली कॉस्टली, वही है सब चीज, जो फास्ट है वो कॉस्टली है दुनिया का रूल यही है, ठीक है। तो अगर टीएलबी में हमें मिल गया डेटा तो बहुत फास्ट होगा, अगर नहीं मिला तो फिर पेज टेबल को जाओ, फिर देख के करो, ठीक है। So first address is checked in TLB. If desired address is absent, then TLB miss is generated, and subsequently the frame is searched in main memory, and then TLB gets updated. That's how it works. ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुमको 10 नैनोसेकंड लग रहा है, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस, अगर तुम्हें 10 नैनोसेकंड लग रहा है इसमें टू एक्सेस द मेन मेमोरी रैम को, बट 20 नैनोसेकंड में तुम्हारे 120 नैनोसेकंड में यू आर गेटिंग इट फ्रॉम टीएलबी। तो अगर पहली बार जब तुमने उस लाइन को एक्सेस करा, तो पहले तुमने 20 में सर्च करा, लाइक टीएलबी में नहीं मिला, देन तुमने 100 में फेच किया डेटा को, ठीक है। सॉरी, दिस इज हिट, पहले मिस देखते हैं। पहले 20 में सर्च करा टीएलबी को, देन 100 में फेच करा उस फ्रेम नंबर को फ्रॉम द पेज टेबल, फिर उसके बाद एक्चुअल उस लाइन को जाके फेच करा। बट अगर अगर तुम्हारा टीएलबी हिट हो गया, सो देन यू विल ओनली नीड 120, बिकॉज एक वो सेकंड वाला बीच का पेज नंबर वाला हट जाएगा। सो द मोर नंबर ऑफ टीएलबी हिट्स यू गेट, अगर तुम्हें
80% तुम्हारा हिट हो रहा है बिकॉज लाइंस गेट लाइक रिपीटेड क्वाइट अ लॉट, ठीक है। और लोकेलिटी भी होता है कि बहुत सारे लाइंस जो कॉमन साथ में वो एक साथ रीड होते हैं बहुत बार। सो अगर 80% तुम हिट कर रहे हो तो 80% टाइम ये हो गया एंड 20% टाइम ये हो गया, तो देखो तुम्हारा टाइम कम हो गया एक्चुअली, इंस्टेड ऑफ बीइंग दिस इससे काफी ड्रास्टिकली ड्रॉप कर गया, मोर क्लोजर टू दिस। इवन दो विद अ लाइक सारा मेरे पास एक्सेस नहीं है, बट जो भी मेरे पास हो रहा है वो हिट वाले के पास जा रहा है टाइम, प्रोवाइडेड दैट वी कैन मेक दिस रेशियो ऑफ गुड, है ना। क्लियर एवरीवन? दिस इज हाउ नंबर्स चेंज इफ यू थिंक अबाउट इट। यहां तक क्लियर है? ओके okay. और एक चीज जो बचा है फाइनल, विच इज स्वैपिंग आउट, है ना। हमने तो बोला कि अभी तक तो सब कुछ रैम में ही रहेगा, टीएलबी से हम सब कुछ पेज वेज लेके आ जाएंगे, बट प्रॉब्लम वही है कि रैम भी लिमिटेड है 4 GB, राइट। नाउ यू माइट हैव गेम विच इज लाइक 16 GB, तो जो रिक्वायर्ड फ्रेम्स है बस हम उन्हीं को रैम में रखेंगे, बाकी सबको हम हार्ड डिस्क में स्वैप आउट करेंगे। सो नाउ द कंसेप्ट इज नो लॉन्गर कि पूरा प्रोग्राम स्वैप आउट हो रहा है, ओके एक्चुअली उसके कुछ फ्रेम्स स्वैप आउट हो रहे हैं, एंड मे बी कुछ फ्रेम्स अंदर भी अभी भी पड़े हुए हैं, दिस इज पॉसिबल, ओके। पूरा स्वैप आउट करना जरूरी नहीं, हो सकता है जो हम थोड़ा सा जगह चाहिए तो कुछ को कर दिया, ठीक है, कुछ कुछ चीजें स्वैप आउट होकर रखी है, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। अदर इज कि उसको सस्पेंड स्टेट में ही भेज दो, सब कुछ निकाल दो उसका, टू पॉसिबिलिटीज नाउ, ठीक है। सो लार्ज प्रोग्राम होने की वजह से लाइक वी माइट नॉट वांट टू कीप एवरी पोर्शन ऑफ दैट प्रोग्राम अवेलेबल इन द मेमोरी, सब रिलेवेंट भी ना हो, तो हम कभी कभी ऐसा भी अलाउ करते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट, कि कुछ पार्ट जो नहीं लग रहा है उसको भी थोड़ी देर के लिए रैम में भेज, हार्ड डिस्क में भेज दो, ठीक है, थिंग्स लाइक दिस। एंड इसका थोड़ा बहुत बेनिफिट्स वगैरह है कि ओवर साइज एरे जिसमें तुम बार बार सिर्फ पहले 10 इंडेक्स ही एक्सेस कर रहे हो, तो बाकी इंडेक्स रखा क्यों है एड्रेस स्पेस में, ठीक है, रैम में, ठीक है। बंच ऑफ थिंग्स, एरर अगर फेल हुआ तो ये रन होगा, फेल हो ही नहीं रहा है तो रखा क्यों वो कोड का इतना बड़ा सा पोर्शन बाइनरी में, है ना। तो थिंग्स लाइक दिस, तो समटाइम्स वी वांट टू स्वैप आउट थिंग्स इनटू कोई फ्रेम जो जगह खत्म हो रहा है, फ्रेम कुछ चीजें नहीं चाहिए तो कुछ फ्रेम को निकाल के बाहर भेज दो हार्ड डिस्क में, ठीक है। सो हमारा फिर कंसेप्ट कैसा हो गया कि हमारे पास एक पेज, एक वर्चुअल मेमोरी है कि जो हमारा प्रोग्राम है 0 100 ऐसे करके, बट वो एक्चुअली मैप होकर के किसी दूसरे मेमोरी स्पेस में जा रही है। फिर हम क्या कर रहे हैं, वी वांट टू बिल्ड अ पॉसिबिलिटी ऑफ वर्चुअल मेमोरी, कि यार ऐसा लगेगा कि ये रैम में बहुत जगह है, क्यों जगह है, क्योंकि जब जगह खत्म होगा तो मैं उसको हार्ड डिस्क में भेज के कुछ और ले आऊंगा उसके जगह, तो हार्ड डिस्क भी हमारा रैम की तरह ही बिहेव करने लगेगा। दिस इज द मोस्ट important memory optimization that OSs have possibly built, मेरे को ऐसा लगता है, because now it gives you the illusion कि जो फ्रेम अभी नहीं लग रहा है थोड़े टाइम के लिए वो बाहर जाके दूसरा फ्रेम आ जा सकता है उसके जगह पे, तो जगह खत्म नहीं हो रहा है रैम में, एंड दैट इज व्हाई इवन रैम्स आर पॉसिबल, मतलब क्योंकि 4 GB isn't that big of like a space for bigger applications जो like हार्डकोर कोई कंप्यूटेशन कोई एप्लीकेशन चलाना है किसी को, ठीक है। जीपीयू रैम, जीपीयू तो बहुत दूर का चीज है, जीपीयू तो हम अभी सीपीयू गेम्स की बात कर रहे हैं, जीपीयू क्यों नहीं पता मुझे, जीपीयू तो बहुत दूर की चीज है, वो बहुत ही अलग अलग आर्किटेक्चर है हार्डवेयर उसका, ठीक है। सो देन देयर कम्स दिस कि पेजेस तो हमने बना दिए, ठीक है, बट कुछ पेजेस फिजिकल मेमोरी से स्वैप होके बाहर चली जाएगी, कि भाई अगर मेरा जो लॉजिकल स्पेस है, दिस इज द मेन लाइक आइडिया, कि 1 2 3 4 5 8 उसमें जो भी पेजेस है आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है। सो यू विल नाउ हैव अ पेज टेबल कि भाई ये बताएगा 1 वाला फ्रेम कहाँ है, 5 है, 5 फिजिकल मेमोरी पे है, ठीक है, और वो वैलिड है। 2 वाला है ही नहीं मेरे पास, देयर इज अ न्यू वैलिड बिट एडेड, कि भाई वो है ही नहीं मेरे पास, इनवैलिड है, मतलब वो कहीं और सेव्ड है तो उसको लेके आना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट नाउ पेज टेबल लुक्स लाइक, दैट विद फ्रॉम द लॉजिकल मेमोरी लाइक जो पेज नंबर है उससे किस फ्रेम नंबर पे जाना है वो तो सेव करेगा ही, बट देन विल आल्सो हैव अ वैलिड इनवैलिड, कि भाई वो अगर स्वैप आउट हो गया तो उसको इनवैलिड मार्क करेगा वो, ताकि अगली बार वो फेच करने की कोशिश करे तो बोले नहीं है मेरे पास, अभी लाना पड़ेगा हार्ड डिस्क से। सो इट, सो दीज टू नाउ स्टार्ट वर्किंग लाइक एन इन कंजंक्शन, कि यार थोड़ा बहुत स्वैप होके इन आउट हो रहा है, जो लग रहा है वो आ जा रहा है वापस, इस टाइप का, तो रैम गेट्स एन इल्यूजन ऑफ कि यार रैम के साथ पूरा हार्ड डिस्क ही मेरे पास पूरा पूरा है, राइट, एंड नाउ योर स्पेस सडनली बिकम्स सो बिग, ठीक है। जैसे सपोज हमें कुछ कुछ एक्सेस करना है, सो द वे इट हैपेंस इज
द प्रोसेस अटेम्प्ट्स टू एक्सेस अ पेज दैट इज नॉट करेंटली इन मेमोरी। सपोज इसने बोला कि कोई एक पेज दे दो, उसका जो लाइक बिट था वो बोला वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है, ठीक है, ये है ही नहीं, ठीक है। सो एक इंटरप्ट बोलता है ओएस, तो एक इंटरप्ट ट्रिगर होता है ओएस को। इंटरप्ट मतलब कि भाई कुछ तो करना है, क्या करना है, पेज फेच करना है, खत्म हो चुका, मेरा पास पेज जो चाहिए वो है नहीं मेरे पास। सो ओएस को एक इंटरप्ट भेजेगा, ओएस का एक लाइक जो पीस ऑफ कंपोनेंट बोलो, जैसे हमने बोला डिस्पैचर, शेड्यूलर, वैसे एक एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, वो फिर उस इंटरप्ट को हैंडल करेगा कि भाई पेज फॉल्ट हुआ है, सो आई विल हैव टू गेट द पेज, ठीक है। सो इट विल, द ओएस फिर हैंडल करेगा लाइक कि इस चीज को, इस प्रोसेस को पॉज करके उस पेज को लाने के लिए काम करना स्टार्ट करेगा। एंड दिस इज व्हाई यू माइट थिंक कि मेमोरी कभी कभी फेचिंग ज्यादा टाइम लगता है। आई मीन अगर सब कुछ रैम में होता तो हमारे वो जो था ना कंप्यूट मेमोरी स्टॉल, कंप्यूट मेमोरी स्टॉल, द मेमोरी स्टॉल्स वुड हैव बीन स्मॉल ओनली, बट हमेशा होता नहीं है, राइट। तो इसीलिए कभी कभी वो मेमोरी स्टॉल्स ज्यादा हो जाता है सीपीयू में, कि सीपीयू चल रहा है बट उसको लगा जो पेज चाहिए, बट वो ओएस ने तो बाहर भेज दिया है, अब उसको रोकना पड़ेगा थोड़ा देर के लिए, ठीक है। हाँ, नहीं, फ्रेम्स पर सेकेंड ऑफ गेम इज डिफरेंट, वो अलग चीज है बट ठीक है, बोल सकते हो, ठीक है। फिर पेज फॉल्ट वैलिडिटी चेक करता है कि यार थोड़ा बहुत कि जो भी तुमने एक्सेस किया है वो सही भी है कि नहीं, जो भी वगैरह वगैरह, ठीक है, नॉट मच इंपॉर्टेंट। एंड देन इट फाइंड्स आउट कि भाई अभी मेरे को ये फ्रेम चाहिए था बट ये फ्रेम है नहीं, तो मुझे उसे फिजिकल मेमोरी लाइक जो रैम में लाना है हार्ड डिस्क से, तो रैम में एक फ्री स्पेस ढूंढो वेयर आई विल गेट दिस पेज लोडेड इन द रैम। बिकॉज हमने क्या बोला कि मुझे ये वाला पेज चाहिए बट ये लोडेड ही नहीं है रैम में, इस प्रोग्राम का लोडेड नहीं, हो सकता है वो जगह पे किसी और प्रोग्राम का कुछ और लोडेड है, ठीक है। सो वी माइट वांट टू गेट वन ऑफ द पेजेस लोडेड इनटू द रैम। अब रैम में ये जगह खाली नहीं है तो फिर, या फिर हम ढूंढेंगे कौन सा खाली स्पेस है, अगर खाली नहीं है तो फिर कोई एक स्ट्रेटजी से वी विल रिमूव आउट अ पेज एंड देन पुट दिस पेज इन इट्स प्लेस, ठीक है। तो लाइक दिस इज हाउ वी डू इट, फाइंड अ फ्री फ्रेम एंड देन लाइक पेज रिप्लेसमेंट करेंगे कि भाई जो भी है वो पेज लेके आओ इधर करो, ठीक है। डर्टी वाला एक ट्रिक होता है, लाइक अगर तुमने कोई, तुम्हारे प्रोग्राम ने कुछ चेंज करा लाइक मेन मेमोरी में, तो उसको फिर वो डिस्क में भी वापस राइट करता है इफ देयर इज अ कॉपी ऑफ दैट इन द डिस्क आल्सो, ठीक है, मच इंपॉर्टेंट। टीएलबी तो यहाँ पर पीछे हो रहा है, ये जो पेज टेबल चेक करने के पहले, मतलब पेज टेबल के ऊपर एक कैश है टीएलबी, वो कोर के अंदर ही है ना, मतलब कोर के अंदर नहीं, पैकेट प्रोसेसर के अंदर, जो पेज टेबल का एक रिप्लेसमेंट है कि इसमें देखने की जगह तुम टीएलबी में देख लोगे, बट ये सेम चीज टीएलबी में भी होगा, वैलिड बिट वाला चीज, ठीक है। टीएलबी में चेक होगा फिर पेज टेबल पे आएगा, पेज टेबल इज लाइक द गोल्डन ट्रुथ, उसके कुछ कुछ रोज टीएलबी में अवेलेबल है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो ओएस देन लोड्स द नीडेड पेज फ्रॉम डिस्क इनटू द फ्री फ्रेम, उसको लेके आएगा, ठीक है। फिर इसको ले आया तो फिर इसको फिर पेज टेबल में डाल देगा कि भाई हाँ ये वाला वैलिड हो चुका है और इस वाले पेज नंबर F1 पे अवेलेबल है, ठीक है। फिर रिज्यूम करेगा प्रोसेस को, ठीक है, कि भाई अच्छा अब तुम्हारा सीपीयू टाइम खत्म हो गया, अब तुम वापस री एग्जीक्यूट करो इसके बाद, अब इसके बाद तुम्हें मिल जाएगा, तो वो जो मेमोरी स्टॉल हुआ था उसके बाद वो अब वो प्रोग्राम वापस स्टार्ट होगा रन करना, तो बिना फॉल्ट के वो चल जाएगा। एंड दिस इज हाउ ऑल ऑफ डिमांड, इसको बोलते हैं डिमांड पेजिंग, जो लगेगा वो लाएंगे पेज को, दिस इज हाउ एक्चुअल कंप्यूटर्स some degree works. Performance, this is super important. मेमोरी एक्सेसेस जैसे होते हैं ना वो 20 लाइक 200 नैनोसेकंड्स इस लेवल पे काम करती है रैम में, मतलब एंड हार्ड डिस्क में इट्स मिली सेकेंड, नैनो के बाद इट्स माइक्रो एंड देन मिली। तो समझ रहे हो इन दोनों में क्या ऑर्डर का फर्क है, रैम को एक्सेस करना है सुपर फास्ट और हार्ड डिस्क को करना इज लाइक 8 मिली सेकेंड, वे वे हायर, है ना। सो देयर इज अ पेज फॉल्ट रेशियो कि कितना जल्दी कितनी बार पेज फॉल्ट हो रहा है, अगर पेज फॉल्ट ज्यादा होने लगेगा तो हमें तो एक तरह से, अगर पेज फॉल्ट ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, तुम हर पेज हार्ड डिस्क में सेव किए उसको ला रहे हो फिर रीड कर रहे हो, तो तुम तो रैम को यूज ही नहीं कर रहे हो, हार्ड डिस्क से बार बार ला रहे हो बैठ के, राइट। सो जितना बार पेज फॉल्ट होगा उतना तुम्हारा देखो ये वाला फैक्टर बढ़ेगा, और दिस इज सिंस पेज फॉल्ट इज जनरली नेग्लिजिबल, यू कैन omit 1 - p एज दिस, p को हमें बहुत हाई, मतलब
बहुत कम रखना पड़ेगा इन अ सेंस कि इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, राइट? क्योंकि अगर ज्यादा पेज फॉल्ट होने का तब तो कोई फायदा नहीं हुआ रैम रखने का, तो हार्ड डिस्क से रीड करो फिर इससे अच्छा, राइट? तो पी बहुत छोटा था इसलिए कैन अप्रोक्सीमेट इट टू 1 ओनली, बट ये पार्ट ये रहेगा। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर 1000 मतलब 1000 पेजेस अगर तुम फेच करो उसमें से एक भी हो गया, ठीक है, सो मेमोरी एक्सेस टाइम 200 नैनो सेकेंड से सीधा 8.2 माइक्रोसेकंड में गिर जाती है। समझ रहे हो? एक पेज फॉल्ट इतना गिरा देगा, 1000 में एक की बात हो रही है ये, ठीक है? तो पेज फॉल्ट तो आइडियली होना नहीं चाहिए, बट फिर भी लाइक इट जस्ट गिव्स अस द इल्यूजन कि यार रैम कभी खत्म नहीं हो सकता। दैट इज वन थिंग वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन, कि हम स्पीड को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट ऐसा लगेगा कि रैम कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। क्या ये पूरा समझ में आ रहा है? हाँ। सो आइडियली पेज स्वैप आउट होना ही नहीं चाहिए। हो रहा है मतलब बहुत चीजें चल रही है, इसलिए तुम्हारा कभी कभी दिखता है कुछ लाइक बहुत सारे प्रोग्राम चल रही है, सब सब स्लो हो गया है। कभी तुमने नोटिस किया कंप्यूटर में ऐसा कि इतनी सारी चीजें सब सब सारे विंडो स्लो चल रहे हैं अचानक से, है ना? इट प्रॉब्ली इज गोइंग टू इज प्रॉब्ली हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट, कि बार बार फेच कर रहा है बट जस्ट स्वैपिंग अराउंड, सबको किसी को जगह ही नहीं मिल रहा है ठीक से, है ना? सबका एक एक पेज आ रहा है जा रहा है, ये कर रहा है, हार्ड डिस्क से रीड हो रहा है एसेंशियली। हार्ड डिस्क में माइक्रो में हो जाता है, हार्ड एसएसडी इज मच फास्टर देन एचडीडी, ठीक है? इट्स फास्टर, बट जैसे देयर आर लाइक हार्डवेयर कॉल्ड एनवीएमई, जो आजकल लाइक लोग सर्वर्स में, तगड़े सर्वर्स में यूज करते हैं हार्डवेयर, ठीक है? इट्स इवन फास्टर। सो ये चीजें लोग यूज करते हैं। क्रोम इज नॉट वर्किंग, वेट और एग्जिट। नहीं, क्रोम तो कर बोल सकते हो एक तरह से, हमेशा नहीं, लाइक बट या टू सम डिग्री। सारे प्रोग्राम अगर हो रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये रीजन है। कोड का टाइमिंग तो एक कोड, जैसे हम लोग जब कोड एग्जीक्यूट करें तो वो तो बस एक ही प्रोग्राम रन हो रहा है, तो इसलिए वो मिलीसेकंड में होता है। एक प्रोग्राम बिना पेज फॉल्ट के रन होता है वो तो। एक प्रोग्राम रन, तुम्हारा छोटा सा सी प्लस कोड का क्या है? ये सब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, गेम्स जीटीए वाई सिटी की बात हो रही है, ये सब तुम्हारा सी प्लस का प्रोग्राम क्या है उसके सामने, है ना? तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। वेट फॉर दिस पेज टू रिस्पॉन्ड और एग्जिट द पेज वाला बोल सकते हो, यस। हाँ, सारे प्रोग्राम्स हमारे सारे सॉफ्टवेयर में जैसे कर्सर धीरे धीरे चल रहा है, तो कर्सर को भी शेड्यूल में टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारे लोग एक एक करके स्वैप इन स्वैप आउट हो रहे हैं और उनका पेज स्वैप इन स्वैप आउट हो रहा है। दोनों रीजन हो सकता है, तो देखना पड़ेगा क्या रीजन है, ठीक है? कर्सर जो तुम हिला रहे हो ना, ये भी तो कोई प्रोसेस चल रहा है। कर्सर जो तुम ऐसे हिला रहे हो तो कर्सर से स्लो हिल रहा है, ऐसे करके क्या हो रहा है? मे बी इट्स लाइक उसको क्यू में जल्दी, इट्स अ रियल टाइम प्रोसेस, तो वो क्यू में सबसे ऊपर है, बट स्टिल इज गेटिंग टाइम, क्योंकि हो सकता है कि कुछ पेज फॉल्ट वगैरह हो रहा है या कुछ तो भी रीजन हो रहा है। ऑब्वियसली डायग्नोज करना इज लाइक सुपर हार्ड, बट कर सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है? देयर इज अनदर कंसेप्ट कॉल्ड प्री पेजिंग, कि यार एक पेज को लाया, ठीक है, बट हमें पता है कि ये पेज जब एक्सेस होता है इसके बाद के 4 पेज भी एक्सेस होते हैं, तो उसको लाया तो सब कुछ लेके उसके बाद के भी 4 पेज लेके आ जाओ, कि भाई कभी कभी लगता है कि ये पेज जब लोड होने वाला है तो इसके बाद के पेजेस भी यूज होने वाले हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, ठीक है? तो उसको भी लेके आ जाओ। दिस इज कॉल्ड प्री पेजिंग दैट ओएस आल्सो इंप्लीमेंट्स, तो ये दोनों का यूज करता है कुछ कुछ, ठीक है? तो दिस इज एसेंशियली हाउ पेजिंग, डिमांड पेजिंग वर्क्स, की जो नहीं है उसको वर्चुअल मेमोरी बनाने की कोशिश की जा रही है, कि इल्यूजन की हमारे पास रैम प्लस एचडीडी बड़ा, इतना बड़ा स्पेस है, कभी खत्म ही नहीं होगा स्पेस हमारे पास, राइट? दैट्स द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी। इनफैक्ट मेरा टावर का क्वेश्चन ये था कि वर्चुअल मेमोरी क्या है, उसका बेनिफिट क्या होता है, ठीक? ओके, तो थोड़ा डिस्कशन हुआ था इसके ऊपर, जो मैं ठीक से नहीं बता पाया था बाय द वे क्योंकि तब मेरे पास ऐसे ऐसा क्लैरिटी नहीं था चीज़ों का कि क्या हो रहा है। मैं कुछ कुछ ऐसे बस क्वेश्चंस, जब मैंने ऐसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस फॉर ओएस जो आंसर आए थे कुछ कुछ पढ़ के मैं चला गया था इंटरव्यू देने, ठीक है? दैट इज व्हाट आई डिड, बट ये क्लैरिटी में जब आंसर होता है ना, तब वो आंसर अलग ही समझ में आता है सामने वाले को भी, इंटरव्यूअर को भी, ठीक है? क्लियर टिल दिस पॉइंट? ओके, बाकी क्या हो रहा है? पेज रिप्लेसमेंट, हमें इसके लिए भी एक एल्गोरिदम चाहिए कि भाई एक को लाना है तो जगह खत्म है, तो एक को हटाना पड़ेगा, किसको हटाएंगे? तो उसके लिए भी कुछ कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजीज बन रखी है,
कि फर्स्ट इन जो सबसे पहले लाया गया था जिस पेज को उसको निकाल दो, दैट माइट बी अनदर स्ट्रैटेजी। फिर इसमें एक एनोमली होता है, दिस इज आल्सो समथिंग दैट इज आस्क्ड क्वाइट ऑफन, बिलिडीज एनोमली बोलते हैं इसको, कि यार अगर तुम लाइक नंबर ऑफ जो तुम्हारा जो कैश है, जो तुम्हारा जो पेज सॉरी लाइक नंबर ऑफ फ्रेम्स जो तुम्हारे रैम में है, राइट, जो तुम हार्ड डिस्क से स्वैप करके लाओगे, अगर वो फ्रेम रैम में फ्रेम्स बढ़ाओगे तो इट शुड इंक्रीज आइडियली, लाइक इट शुड डिक्रीज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, बट कुछ ऐसे स्ट्रिंग भी हो सकते हैं जिसमें वो पेज फॉल्ट इंक्रीज करने लगे, लाइक जैसे अगर तुम ऐसे देखोगे कि अगर ये सीक्वेंस में पेजेस फेच हो रही है 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5, तो अगर 3 पेज साइज है तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर आएगा क्या 4, 4 किसी एक को रिप्लेस करेगा, किसको रिप्लेस किया, 4 ने इसको रिप्लेस कर दिया 1 को, क्योंकि वो सबसे पहले आया था। देन फिर आएगा, फिर क्या चाहिए 1, बट 1 तो रिप्लेस हो चुका है, तो इसने फिर सबसे पहले आया 2 उसको रिप्लेस कर दिया, तो 2 पेज फॉल्ट। ठीक है, पहले ये सब भी पेज फॉल्ट ही थे क्योंकि था ही नहीं है रैम में मेरे पास। ठीक है, फिर 2 आया वो भी पेज फॉल्ट, फिर से 5 आया तो ये भी पेज फॉल्ट, फिर 1 आया, फिर 1 आया तो वो है ऑलरेडी, 2 है ऑलरेडी है, फिर 3 आया तो उसने 1 को रिप्लेस करा, 4 आया उसने 2 को रिप्लेस करा, एंड 5 ऑलरेडी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कितने, 9 ही है ना, 3 3 3 9, तो 3 फ्रेम्स में अगर है तो मेरे पास अप्रोक्सीमेट 9 पेज फॉल्ट हुए मेरे, राइट। बट 4 होंगे ना इस केस में, तो तुम देखना 10 हो जाएंगे अचानक से। ठीक है, तो 4 में ये 1 2 करोगे तो हिट हो गए, फिर 5 यहाँ पर फेल, फिर 1 2 सब एक एक करके साइक्लिकली फेल करेगा, तो बढ़ गया इनफैक्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बिलेडीज एनोमली, ये इंटरव्यू में पूछ लेते कभी कभी। ठीक है, कि भले ही तुम रैम में फ्रेम्स बढ़ा रहे हो बट तुम्हारा पेज फॉल्ट बढ़ रहा है, ऐसा कभी हो सकता है क्या, हो सकता है, दैट्स कॉल्ड बिलेडीज एनोमली, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट के लिए ढूंढ नहीं पा रहा है एसेंशियली, या ऐसा कुछ वैल्यू है जिसकी वजह से हो जा रहा है ना। देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, या अगर तुम्हें एक्चुअल एल्गोरिथम लिखना है ना, जो तुम्हें अगर पता हो कि कौन पूरा सीक्वेंस क्या है, ऑप्टिमली निकालो, दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ सीपी। ठीक है, तुम्हारे पास एक्स नंबर ऑफ फ्रेम्स है, तुम्हें पूरा सीक्वेंस दिया गया है, तुम्हें बताना है कि मिनिमम पेज फॉल्ट करते हुए तुम कौन से चीज को कब सेव करोगे, क्या करोगे, तो इसका एक एल्गोरिथम होता है। ठीक है, दिस इज समथिंग आई रेड इन, मतलब मेरे को भी नहीं आता था, आई रेड इन दिस कोर्स कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम्स, तो लाइक इसका एक बहुत ही अच्छा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आता है, व्हिच इज बिलिटीज मेन एल्गोरिथम भी बोलते हैं, कुछ नहीं। जब तुम एविक्ट कर रहे हो, ठीक है, जब तुम यहाँ पर 1 0 1 और 7 में से किसी एक को एविक्ट करना है, तो जो सबसे इन सब में से इसके बाद सबसे दूर में यूज होने वाला है, जैसे 0 अभी यहां यूज होगा, 1 नेक्स्ट यहां यूज होगा, 7 नेक्स्ट यहां यूज होगा, तो 7 को एविक्ट करो। फारदेस्ट यूजिंग जो सबसे बाद में यूज होने वाला है उसको सबसे पहले एविक्ट करो। ओके, सो दिस इज इनफैक्ट अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ सीपी आल्सो, मतलब डीएसए सीपी आल्सो, कि किसको एविक्ट करोगे, द वन दैट इज ग्रीडी स्ट्रेटजी, है ना, फारदेस्ट वाला। ऑफलाइन करके यू कैन डू दिस थिंग, कि बिल्ड अ स्ट्रेटजी व्हिच विल डू दिस, पूरा ऑफलाइन करके यू कैन डू दिस आइडिया। ठीक है, बट असली दुनिया में ये नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमें बात का पता ही नहीं ना कौन सा रेफरेंस होगा, अगर पता होता तो सब ही निकाल लेते ऑप्टिमली, है ना, बात का ही तो नहीं पता हमें, द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है कि बात का नहीं पता हमें। ठीक है, तो वी हैव टू डू इट ऑनलाइन, तो उसके लिए लीस्ट रिसेंटली यूज की, जो सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज हुआ है उसको अपन नेविगेट करते हैं, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज। और भी इसके एल्गोरिथम्स है, हाँ वही, इसका और भी एल्गोरिथम है, क्लॉक एल्गोरिथम, ये सब वगैरह तुम पढ़ सकते हो, और लाइक दिस इज अ टॉपिक इन इटसेल्फ, एंड इनटू फ्रेम साइज होगा ना डायमेंसिटी। हाँ बोल सकते हो, या तुम हर नंबर पे वो नंबर नेक्स्ट कहाँ एक्सेस हो रहा है वो सेव करके अगर मैप चलाते हुए पीछे से आओ तो हो जाएगा, मे बी समथिंग लाइक दैट, है ना। तो बिलेडीज मिन अगर यूज कर देखो, इसमें कितने सारे पेज फॉल्ट हो रहे थे, बिलेडीज मिन में सबसे कम होंगे, बट एलआरयू फिर भी ठीक ठीक काम करता है, तो एलआरयू जनरली यूज करते हैं। ठीक है, उसमें भी एलआरयू भी इज अ कॉस्टली ऑपरेशन, सो एलआरयू का भी कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं एक्चुअल में। ठीक है, देन एक और जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली पूछ लेता है मेमोरी में, इज समथिंग कॉल्ड एज थ्रैशिंग, कि भाई ये थ्रैशिंग क्या होता है ना। तो थ्रैशिंग क्या होता है, एक तो अभी जैसे ये क्या था, रिप्लेसमेंट था कि किसको रिप्लेस करेंगे उसके लिए। थ्रैशिंग क्या है कि भाई एक प्रोग्राम जब चल रहा है, राइट, तो हमने क्या बोला, बिकॉज ऑफ रैम लिमिटेड हम कुछ कुछ को स्वैप आउट करके बाहर रखेंगे, पर यार अगर
बहुत ज्यादा स्वैप आउट होने लगा बाहर, और मेरे को जितना मेरे 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 प्रोग्राम के 10 फ्रेम थे, उसमें से 8 तो बाहर हार्ड डिस्क में पड़े हुए हैं। तो अगर इतना ही कम जगह है तो फिर तो मतलब हमें क्या करना चाहिए, पूरा प्रोग्राम को ही स्वैप आउट कर देना चाहिए और बाकी लोगों को जगह देना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लाइक थ्रैशिंग, कि भाई जब तुम इतने सारे प्रोग्राम्स को तुमने चला दिया है कि सबका मतलब मैक्सिमम पोर्शन बाहर स्वैप्ड आउट है, तो उससे अच्छा क्या ही चल रहा है फिर। इफ यू इंक्रीज अ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है, तो ये सीपीयू यूटिलाइजेशन पहले बढ़ रहा है धीरे धीरे अच्छे से, ठीक है, बट सडनली सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्रोग्राम, तुम्हारा कंप्यूटर सिर्फ पेज फॉल्ट हैंडल करने में टाइम चला जाएगा, उसका दिन पूरा कहानी है ना, कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। सो लाइक डिमांड पेजिंग करते करते खत्म हो जाएगा टाइम, इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग, कि जो भी पेज मांग रहा है वो बोल रहा है डिमांड पेजिंग, फिर वो अगला वो भी बोल रहा है डिमांड चाहिए, उसको चाहिए पेज चाहिए, वो फेच कर रहा है, फिर एक बार रन कर रहा है, हर बार फेल हो रहा है, फिर रन कर रहा है, तो कितना स्लो हो जाएगा कंप्यूटर, राइट। सो दिस इज अ ग्राफ दैट यू बिल्ड कि कितने डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग तक तुम्हारा रैम अच्छा काम कर रहा है, एंड यू वांट टू रन ओनली दोस मेनी प्रोग्राम्स एट अ सर्टेन टाइम। ठीक है, तो दिस इज व्हाट लाइक एक वर्किंग सेट बोल के एक कंसेप्ट होता है कि फिक्स नंबर ऑफ पेज रेफरेंसेस, जैसे अगर लाइक सपोज 10,000 इंस्ट्रक्शंस का है, तो वर्किंग सेट ऑफ अ प्रोसेस पीआई इज द टोटल नंबर ऑफ पेज रेफरेंस इन मोस्ट रीसेंट डेल्टा टाइम। तो हम क्या रखते हैं कि कितने सारे डेल्टा टाइम में हमारे कौन कौन से पेजेस बार बार हिट हो रहे हैं, ठीक है, तो उतने लोगों को हम एक्टिव रखते हैं, बाकी सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अगर हर प्रोग्राम का टोटल जितना उसका वर्किंग सेट है उससे ज्यादा अगर रखेंगे तो वो उससे ज्यादा टोटल जितना वर्किंग सेट है इस प्रोग्राम को सही से चलने के लिए उसको अपने रिसेंटली 4 पेजेस तो चाहिए, इतना तो चाहिए उसको, ठीक है, तब वो सही से चलता है। सबका अगर हमने ऐड करा और देखा कि यार सबको जितना चाहिए उतना तो हमारे रैम में फ्रेम्स ही नहीं है, तो फिर हम बोलेंगे कि भाई थ्रैशिंग होने वाला है, तो अगर इफ डी बिकम्स ग्रेटर देन एम तो हम सस्पेंड कर देंगे एक प्रोसेस को, और हम ये WSS अप्रोक्सीमेट करेंगे कि एक प्रोग्राम को अप्रोक्सीमेटली कितने फ्रेम्स लगते हैं सही से चलने में, ये हम अप्रोक्सीमेट करेंगे स्टैटिस्टिक्स, मतलब एज वो चल रहा है तो पता चलता रहेगा हमें धीरे धीरे। एंड जब भी ये हो जाएगा डी लाइक सम ऑफ वर्किंग सेट फ्रेम्स जितने सारे चाहिए, तो बोलेंगे थ्रैशिंग हो रहा है, बाहर निकालो एक को, तो एक प्रोग्राम को हम फिर सस्पेंड स्टेट में भेज देंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट इज हैपन। And now maybe you can answer this question which is often asked to competitive programmers कि भाई इंटरव्यू में नहीं, इन जनरल, कि भाई ये दो कोड है, कौन सा फास्ट चलेगा, प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 2, बताओ। फर्स्ट प्रोग्राम है, सेकंड प्रोग्राम, कौन सा फास्ट चलेगा? ये दोनों सेम ही चलेगा, दोनों का तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 120 80 है विवेक। इट टर्न्स आउट सेकंड वाला ज्यादा फास्ट चलता है, ठीक है, बाय ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टेंट्स ओनली, तो हम उसे मैटर नहीं करता है हमारे लिए, बट एक्चुअली सेकंड कोड फास्टर होता है। इसलिए तुमने देखा होगा कभी कभी डीपी के कोड्स में छोटा वाला इंडेक्स को सामने रखते हैं, ठीक है, एंड आई टेल यू द रीजन व्हाई नाउ। सो इसमें क्या होता है ना कि जो तुम्हारा ये 2D एरे है, तो ये भी तो एक सीक्वेंस होता है ना, रो मेजर ऑर्डर, आई थिंक तुम लोगों ने पढ़ा होगा C++ में, दैट रो मेजर ऑर्डर करके होता है, ठीक है, समथिंग कॉल्ड एज, लेट मी शो दैट टू यू। तो जो जो तुम्हारा मैट्रिक्स है सपोज ऐसा, तो ये ऐसे करके लीनियरली स्टोर होता है सब स्टोर तो एरे में ही स्टोर होना है सब चीज, तो लीनियरली स्टोर होता है ऐसे करके। तो तुम्हारे एरे में कैसे स्टोर है, सपोज तुम्हारा ये है, मैं अभी 3x3 बना रहा हूँ, ठीक है, ड्रॉ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो ये रैम में कैसे स्टोर्ड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसे स्टोर्ड है, और ये समझ लो एक एक पेजेस में स्टोर्ड है, ऐसे पेज पेज ऐसे करके कुछ कुछ, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, ये बोलेगा, ये कैसे एक्सेस करेगा, J = 0, मतलब 1 4 7, पहले करेगा 1 4 फिर 7, फिर करेगा 2 5 फिर 8, फिर करेगा 3 6 9, सब अलग अलग पेजेस से आ रही है, राइट, एवरी टाइम इट्स एक्सेसिंग डिफरेंट लाइक सेल, वो देखो सब अलग अलग पेजेस से आ रही है ना। अगर मैं इसको 3 साइज का पेज कर दूं तो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा, हर चीज अलग पेज से आएगी, देखो ध्यान से, हर चीज ही, अगर यहाँ 9 तक गए अपन, ये क्या 9 तक गए, हर चीज 1 इस पेज से,
फिर 4 इस पेज से, तो अलग अलग पेज से आ रहा है। कभी कभी कोई पेज स्वैप्ड आउट है तो वो फिर डिमांड पेजिंग करेगा उसको, राइट। जबकि इस केस में, राइट, व्हाट विल हैपन इज पहले वो करेगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर इसका काम खत्म, ये स्वैप आउट हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर 4 एक बार लाएगा, वैसे तो सब कुछ ही अवेलेबल है, ठीक है। इनफैक्ट प्री पेजिंग होगा तो जब ये एक्सेस हो रहा है तो वो ये सब भी लाके रखेगा ऑलरेडी, ठीक है। सो देन इट विल एक्सेस दिस 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 देन दिस, तो प्री पेजिंग भी हो रहा है तो वो जो पेज हो रहा होता है उसके आगे पीछे पेजेस ले आता है वो ऑलरेडी ओएस बाय डिफॉल्ट, राइट। एंड देन एवरीथिंग विल बी अ पेज हिट इंस्टेड ऑफ बीइंग कि यार कुछ फेल हो गया। इनफैक्ट टीएलबी में भी वो चीजें सेव्ड रहेगी कि भाई ये पेज नंबर कौन से रो में जाता है वो भी सेव्ड रहेगा। तो ऑल दीज थिंग्स मेक इट सुपर फास्ट एंड दैट्स व्हाई रो मेजर ऑर्डर में ही ट्रैवर्स करना इज फास्टर, इनफैक्ट sometimes 2x also, right? This is another optimization that you can sometimes pull off. Why is it happening? Now you have a clear answer. All caches सारे कैश हिट करती है, एवरी टीएलबी वाले कैशेस सारे हिट कर जाएगी, राइट। पेज फॉल्ट इज नॉट द रियल रीजन, पेज फॉल्ट तो अज्यूम करते नहीं भी हो रहा है, तब भी टीएलबी में जब ये पेज नंबर पहला तुमने 1 हिट किया तो 2 3 के लिए टीएलबी में चीजें सेव्ड है, राइट। दैट्स व्हाई इट्स सो फास्ट। दोनों रीजन दो तरह से काम कर रही होती है, एक इधर से फास्ट है, कैश बार बार हिट होगा, इधर से पेज फॉल्ट नहीं होगा कभी, दोनों काम कर रही होती है एंड दैट्स व्हाई दिस इज फास्टर, ठीक है। सम पीपल बी लाइक विवेक अब बहुत पढ़ा दिया आपने आज। दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, ठीक है। अनदर ब्यूटीफुल आइडिया दैट पीपल हैव इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, कि जब दो प्रोसेस शेयर वेयर कर रही होती है, ऐसे ऐसे फोर्क करके बना रही होती है, तो क्या उनका एड्रेस स्पेस इंस्टेंटली कॉपी पेस्ट हो जाता है? नॉट रियली, उनका जो वो लॉजिकल स्पेसेस है ना वो कॉपी होती है, सेपरेट बनती है, बट वो अभी भी सेम फिजिकल मेमोरी को लाइक पॉइंट कर रही होती है। व्हेन यू एक्चुअली वांट टू चेंज समथिंग इन दैट मेमोरी ना, तब जब वो उस पे कुछ चेंज होगा तभी वो कॉपी करके एक नया फ्रेम इस नया प्रोसेस के लिए एलोकेट करता है, तब तक के लिए दोनों के लिए प्रोसेस सेम रहता है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट व्हिच इज कॉल्ड COW करके, व्हिच इज कॉपी ऑन राइट, यूज्ड बाय टन ऑफ सॉफ्टवेयर। तुम्हें अभी आज तुम कभी देखोगे कि अरे मतलब देखो, जब तुम यहाँ पर प्रोसेस बनाते हो तो इसका जो एड्रेस स्पेस था उसका हर लाइन किसी न किसी रैम के पॉइंट, किसी भी लाइक यूजिंग द पेज टेबल किसी रैम के किसी फ्रेम को पॉइंट कर रहा होगा, राइट। एवरीथिंग विल पॉइंट टू अ फ्रेम पेज, है ना। तो इवन व्हेन यू फॉर्क समथिंग, लाइक फोर्क करके जब तुम उसमें कुछ डेटा चेंज करते हो तो जो डेटा चेंज होता है सिर्फ उसके लिए ही एक नया प्रोसेस बनता है, एक नया कॉपी बनता है, एक नया फ्रेम एलोकेट होता है। जो डेटा सेम है वो दोनों डेटा दोनों सेम फिजिकल मेमोरी में सेम ही जगह पे स्टोर हो रही है, राइट। अगर कोई दो थ्रेड है वो सेम कोड को एक्सेस कर रहा है तो वो सेम कोड यहीं पर रहेगा, जब तक कोई डेटा अगर चेंज हो तो वो डेटा के लिए नया फ्रेम एलोकेट किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉपी ऑन राइट, यूज्ड बाय बंच ऑफ सॉफ्टवेयर्स, टन्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, जो डेटाबेसेस के कंपनी स्टार्टअप्स खुलती है इधर से उधर, ये वो जो बंच ऑफ ऑप्टिमाइजेशंस वगैरह करती है, डॉकर से लेकर के हर चीज जो तुम सुनोगे, ये कॉपी ऑन राइट इज अ कंसेप्ट यूज्ड इन सो मेनी सॉफ्टवेयर पीसेस, ठीक है। बट दिस ओरिजिनली वाज ट्राई टू बी यूज्ड एट इन दिस ओएस, ठीक है, कि whenever something will change is when I will duplicate it। दो लोग सेम चीज यूज कर रही है बट दोनों के लिए है अलग, होना चाहिए था अलग बट मैंने अलग बनाया नहीं है। जब पहली बार नया वाला कोई एक जन कुछ चेंज करेगा तो उस दोनों के लिए अलग बन जाएगा। दैट इज व्हाट दिस इज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉपी ऑन राइट, बस अ ब्यूटीफुल आइडिया, जस्ट जान के रखो नाम बस, कॉपी ऑन राइट। कॉपी ऑन राइट इज दोनों के लिए मेमोरी सेम है, दोनों सेम डेटा रीड, वेरिएबल कुछ नहीं है। देखो अगर प्रोसेस वन का होना चाहिए था x और P2 का भी x अलग अलग होना चाहिए था, बट जब तुम फोर्क करते हो तो वो दोनों सेम जगह पॉइंट कर रही होगी। बट जब तुम P2 में लिखोगे x इक्वल टू 5 तो ये एक नया फ्रेम बना के उसमें 5 x इक्वल टू 5 सेव कर देगी और इसको बोलेगी ये तुम इसको नहीं, इसको पॉइंट करो, ठीक है। ओके, बस दैट्स इट, बस मेरे को इतना ही बेसिक बताना था, ठीक है। रिवर्ट प्रोसेस कभी नहीं होता है, प्रोसेस कभी रिवर्ट करना तो इम्पॉसिबल है। इंस्ट्रक्शंस तुम उल्टा रन कभी नहीं कर सकते, आई डोंट थिंक दैट इज सपोर्टेड। अंडू थोड़ी है यहाँ पर,
ये बस आइडिया है, बस ये आइडिया जान के रखो और कुछ नहीं। यूज करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत हमने पढ़ लिया आज, बहुत ही आज ये पढ़ ली, बट काफी इंटरेस्टिंग आइडियाज पढ़ लिया। पूरा मेमोरी समझ में आ गया कैसे करके काम कर रहा है ये, मेन मेमोरी कैसे काम करता है और ये वर्चुअल मेमोरी कैसे काम करता है, लाइक रैम स्वैपिंग स्वैपिंग वाला कहानी, ये दो चीज जानना है। और हमने ये थ्रेडिंग वाला चीज भी पढ़ लिया कि शेड्यूलिंग कैसे करके होता है, राइट। और काफी इसमें अच्छे अच्छे लाइक सॉफ्टवेयर के लाइक नगेट्स है, इफ यू थिंक अबाउट इट, लाइक टू ऑप्टिमाइज थिंग्स। ठीक है, सो दिस इज प्रीटी मच द आइडिया फॉर टुडे। तो हमने मेमोरी एंड कौन सा शेड्यूलिंग कवर कर लिया। There are few more things I'll see. I mean, they are not as important as these, but there is deadlock and synchronization करके एक चीज होता है, right? This is one thing that we'll talk about कि एक ही वेरिएबल अगर जैसे सपोज तुम्हें फोर्क कॉल करना है, ठीक है, तो वो सारे लोगों का मतलब जैसे इसका जैसे फोर्क कॉल करोगे तो इसको 656 2615 चाहिए, है ना। तो तुम अगर एक ही टाइम पे दोनों को का ये कोड रन हो गया, दोनों अलग अलग प्रोसेस का रन हो गया, तो दोनों को सेम प्रोसेस आईडी मिल जाएगा, राइट। दिस माइट बी अ प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन, दोनों को प्रिंटर चाहिए, दोनों वेट कर रहे हैं, किसी को मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, bunch of things like that might happen. ठीक है, virtual machines so will not touch upon, but virtual machines are another interesting thing to learn about. ठीक है, हार्ड डिस्क कैसे काम करती है, मे बी विल नॉट गेट इनटू दिस आल्सो। हार्ड डिस्क कैसे, हार्डवेयर कैसे काम करती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट ऐसे कुछ आर्म्स होती है जो मतलब परसिस्ट डेटा, तुम्हें बोला ना परसिस्ट करना पड़ेगा कि कंप्यूटर बंद होगा तब भी चलेगा। ये बहुत हार्ड प्रॉब्लम है एक्चुअली, कि इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दूंगा तब भी मेरा डेटा सेव रहना चाहिए। हाउ डज दैट हैपन? इट्स अ फेयरली इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसे और भी प्रॉब्लम्स है ओएस में, आई विल सी इफ यू वांट टू कवर दिस। ठीक है, बट हाँ, रेड 1 to 10, रेड के बहुत सारे सिस्टम्स है, एंड देन हाउ मच डुप्लीकेशन डू दे वांट टू कीप, मैनेजमेंट ऑफ डेटा दैट दे हैव इन द सिस्टम्स एंड स्टफ, रिडंडेंसी क्रिएट करते हैं टू मेक श्योर दैट इट्स फॉल्ट टॉलरेंट एंड स्टफ। तो वी कैन टॉक अबाउट इट, बट अभी तो नहीं, आई थिंक इट्स नॉट important. So maybe we'll have one more session which is going to be around a brief of the rest of the things, but majorly this is what OS questions is going to be around. Yes, synchronization and deadlock is important, so that we'll cover tomorrow. Okay. And I think that should be pretty much it about this. Okay, cool. Chalo then, this should be it for today. I'll stop the recording.